بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 30 رجب کا اتوار والا دن آ چکا ہے۔ چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پہ پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں 30 سیکنڈ آدھا منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اور اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیوں ہوں، ان سب کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ لینا۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ دن، یہ 30 رجب کا اتوار کا دن اتنا خاص ہے کہ آج 300 کروڑ بھی مانگو گے نا تو اللہ پاک کی ذات فوراً عطا کر دے گی۔ ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ 30 رجب کا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، دوستوں، بھائیوں بہنوں، پہلے یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اس چھوٹے سے عمل کو ایک مرتبہ دوستوں، بھائیوں بہنوں پڑھ کے دیکھنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، فوری طور پر اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا نہیں کہ آپ کو اس کا اثر 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں کہ 30 رجب اتوار کے دن کا یہاں عمل کیا اور وہاں آپ کی زندگی میں دولت پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ 30 رجب کا اتوار والے دن کا جو شخص، جو بندہ، جو بھائی بہن صرف ایک مرتبہ سال میں صرف ایک دن یہ آتا ہے اور 30 رجب والے دن اتوار کو کہیں بھی موجود ہو، سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلا جو آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تمام میرے بھائیوں بہنوں، تمام کے تمام وظائف بے حد آسان ہیں، کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں جو پڑھنے میں آپ کو مشکلات پیش آئے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، پورے کا پورا دن موجود ہے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، سکون سے بیٹھ جانا اور میرا یہ آزمودہ، یہ خاص عمل جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ صرف ایک مرتبہ، صرف آدھا منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی نا وہ پاؤ گے، جو آپ کی حاجت ہوگی، جو خواہش ہوگی، جو آرزو ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہوگی۔ جو بہن بھائی کئی سالوں سے جن کی پوری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے لیکن جن کو آج تک کوئی فائدہ نہ ہو سکا، وہ تمام لوگ بھی اس عمل کو آج اتوار کے دن 30 رجب کو دوستوں، بھائیوں بہنوں بیٹھ کے سکون سے پڑھ لینا۔ اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھنے کی جو پابندی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو 30 رجب کو اتوار والے دن، سنڈے کا جو دن ہے 11 فروری کا، اسی دن آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ دن کی میں نے آپ کو پابندی بتا دی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، کہیں بھی موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، دکان میں، مکان میں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، سکون سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے اور میرا یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو جو شخص، جو بھائی بہن اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے نا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، فوری طور پر مالدار ہونا چاہتے ہو، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً سے پڑھ لینا۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہو فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا اور ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر پریشانی آپ کی تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، انشاءاللہ پریشانیوں کا خاتمہ ایک دن میں ہوگا، بے روزگاریوں کا خاتمہ ایک دن میں ہوگا، جو من کی مراد ہوگی پاؤ گے، جو مانگو گے اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کیا ہے، بے شمار مرتبہ میں نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، تقریباً 8-10 سال ہو گئے جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتا ہے۔ 30 رجب کا عمل میں ہر سال کرتا ہوں اور میں نے کئی اپنے ایسے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو عمل بتایا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہوگا کہ جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اس کی حاجت مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک جادوئی وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی فوراً حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا جو بھی درود پاک میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں آپ لوگوں کو آتا ہو، آپ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص عمل شروع کر دینا۔
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये गायबी दौलत वाला 30 रजब का ये वजीफ़ा, उतवार वाले दिन का ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ना शुरू कर देना। सबसे पहले जो वजीफ़ा फर्स्ट नंबर पर इस अमल में शामिल करना है, ये पूरा अमल याद रखिएगा, एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पूरा अमल एक साथ आपको करना है। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर आके थोड़ी देर बाद एक और वजीफा पढ़ा, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। पूरा का पूरा अमल शुरू से लेके एंड तक आधे मिनट का अमल है, कोई घंटों मिनटों बैठ के आपको ये अमल नहीं करना। बिल्कुल आसान सा छोटा सा वजीफा है, आधे मिनट का ये पूरा अमल मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ लेना। इंशाल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज खाली झोलियां वजीफा पढ़ते ही भर जाएंगी। जो मांगोगे, जो मन की मुराद होगी ना, वो पाओगे। सबसे पहले आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इस अमल में पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो वजीफा आपको शामिल करना है दोस्तों भाइयों बहनों, ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा कौन सा है? ये वजीफा है या सलामू का। या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू। आप लोग अपने अंदाज से पढ़िएगा, सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, जैसे आपको बेहतर लगे। पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आपको इस अमल में यही वजीफा पढ़ना है, या सलामू। दोस्तों भाइयों बहनों, बिल्कुल आसान सा वजीफा है, मुख्तसर सा वजीफा है। इस वजीफे को आप लोगों ने 30 रजब का ये जो वजीफा है उतवार वाले दिन का, इसमें आपको पहले नंबर पर दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद या सलामू का वजीफा पढ़ लेना है। या सलामू का वजीफा जैसे ही आप लोग पढ़ लें तो इस अमल में फौरी तौर पर फौरन से इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सेकंड नंबर पर भी बड़ा आसान सा वजीफा है, बिल्कुल छोटा सा वजीफा है मेरे भाइयों, मुख्तसर सा वजीफा है। ये पूरा का पूरा अमल शुरू से लेकर आखिर तक दोस्तों भाइयों बहनों एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के ये पूरा अमल करना है। और दोस्तों भाइयों बहनों, आपको अगर इस अमल की इजाजत चाहिए हो, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना। जो मेरे प्यारे बहन भाई दोस्त अहबाब पूरी दुनिया से इस वीडियो में शामिल हैं, जो वीडियो पे क्लिक करके आए हैं अपनी हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए, जो वजीफा पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने क्लिक किया है, जो वीडियो में शामिल हैं, तमाम मेरे दुखियारे परेशान बहन भाइयों को इस खास अमल की इजाजत है। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आपने आज किसी भी वजह से, कोई भी वजह हुई और आपने जाने अनजाने में कोई बहाना बना दिया, कुछ भी हुआ और आपने ये वजीफा आज ना पढ़ा ना, तो ये दिन, ये मौका मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको इसके बाद जो मिलेगा वो 2025 में जब 30 रजब का दिन आएगा, जब आपको दोबारा ये मौका मिलेगा। तो आज ये दिन है और इसी दिन का ये वजीफा है। ये उतवार जो नॉर्मली उतवार का दिन होता है, उस उतवार का ये वजीफा नहीं है। ये 30 रजब को, इसी उतवार को आपको साल में सिर्फ एक दिन आता है। दोस्तों भाइयों बहनों, ये झोलियां भरने वाला एक ही दिन आता है। इस दिन आपको ये अमल करना है, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। सबसे पहले आप लोग एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना। जो भी दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें तो दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल का पहले नंबर पर जो वजीफा आपको मैंने बताया या सलामू का, आपको पढ़ना शुरू कर देना है। और ये वजीफा या सलामू का आपको इस अमल में पहले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ लेना है। और बराह करम कोई भी वजीफा जो मैं आपको पढ़ने के लिए बताता हूँ, अपनी तरफ से आपको कमी पेशी नहीं करनी, ना ही एक मरतबा वजीफा कम पढ़ना है, ना ही ज्यादा पढ़ना है। अपनी तरफ से अगर तब्दीली करोगे तो कोई फायदा ना होगा। पहले नंबर वाला वजीफा आपको 7 मरतबा सुकून से इत्मीनान से बैठ के पढ़ लेना है। और ये पूरा अमल जो आज आप 30 रजब को इतवार वाले दिन पढ़ने के लिए बैठोगे, इस अमल को, पूरे अमल को पढ़ने के लिए पहले से आप लोग आधे मिनट का वक्त निकाल कर इस अमल को पढ़ने के लिए बैठिएगा। वो आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो, बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से। आपको ये वजीफा नहीं पढ़ना, अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। कई मेरे बहन भाई ऐसे भी होते हैं कि जिनके दिलों में पहले से वसवसे होते हैं कि पता नहीं हम जो वजीफा पढ़ रहे हैं असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आपने अपने दिमाग में, अपने जहन में इस तरह का कोई भी एक वसवसा रखा, सवालात रखे, तो ये वजीफा आपका बिल्कुल असर नहीं करेगा। तो आज 30 रजब वाले दिन उतवार को 11 फरवरी का इंग्लिश तारीख में दिन पड़ेगा। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं कि आप लोग पाकिस्तान से हो तो आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हो,
किसी भी मुल्क से हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, अमान, मस्कत, जापान, इटली, कोई भी मुल्क है, कोई भी शहर जहां आप रहते हो, अपने घर में हो चाहे तो वहां बैठ के पढ़ लो, दुकान में हो चाहे मकान में, चाहे ऑफिस में, चाहे मस्जिद में, मदरसे में, चाहे कोई जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ पाबंदी ये है कि आपको 30 रजब को इतवार वाले दिन ये वजीफा पढ़ना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जो पढ़ता है आज तक, मैंने मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अमल को जिस किसी को बताया, कोई ऐसा बंदा या बंदी मेरी नज़र में ऐसा नहीं गुजरा कि जिसको मैंने ये अमल बताया हो उसकी हाजतें मुरादें फौरी तौर पर पूरी ना हुई हो। तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, बिल्कुल गुर्बत की इंतहा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का दिन ये मौका फिर ना मिलेगा। कितनी भी मसरूफियात, कितनी भी कामों में लगे हों, सिर्फ आधा मिनट आपको निकालना है, सिर्फ आधा मिनट 30 सेकेंड, और कोशिश करना है कि ये आधा मिनट का अमल आज इतवार वाले दिन 30 रजब को 2-3 मरतबा रिपीट कर लेना। जैसा कि सुबह एक बार अमल कर लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, फिर शाम में या रात में एक मरतबा रिपीट कर लिया, क्योंकि इस अमल को साल में सिर्फ एक दिन ही पढ़ना है। तो हो सकता है आपसे कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो इस तरह आपको 2-3 मरतबा रिपीट करेंगे तो आपका जो कमी पेशी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल शुरू कर देना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी जब पढ़ लें तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के इस अमल का पहले नंबर वाला वजीफा मैं आपको बता चुका हूं, या सलामू का पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा। कोई भी वजीफा जो मैं आपको बताऊं उसमें बराहे करम ना ही एक मरतबा कम पढ़िएगा, ना ही एक मरतबा ज्यादा। जो वजीफा जिस तादाद में बताया जाए, बराहे करम उसी तादाद में पढ़िएगा। अगर आप लोग अपनी तरफ से थोड़ी सी भी कमी पेशी करोगे फिर कुछ फायदा हासिल ना होगा। पूरा अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों पहले आप लोग समझ लो अच्छी तरह। और दोस्तों, भाइयों बहनों, बार बार वीडियो को आगे पीछे मत करो, स्किप करते करते आगे भगाते भगाते मत देखो। बड़ी ही अहम बातें इस अमल के मुतालिक आपको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। बार बार काटे जाओगे, स्किप करते जाओगे, अमल को सही तरह समझोगे नहीं तो कोई फायदा ना होगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया आपने, 7 मरतबा पहला वजीफा या सलामू का पढ़ लिया, तो सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपको शामिल करना है बिल्कुल छोटा सा आसान सा वजीफा है, मुख्तसर सा वजीफा है। इतना आसान वजीफा है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि कोई बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे ना तो वो भी पढ़ ले। ये दूसरे नंबर वाला वजीफा इतना इजी है, इतना आसान है, ये पूरा का पूरा अमल दोस्तों भाइयों बहनों इतना आसान है कि जिन बहन भाइयों को एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता ना, वो भी बड़े आराम से इस वजीफे को पढ़ लेंगे। तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र हो जाएं कि ये कोई मुश्किल वजीफा है या आपको घंटों मिनटों बैठ के पढ़ना है। सिर्फ आधा मिनट 30 सेकंड आपको आज के दिन इस अमल को पढ़ने के लिए निकाल लेने हैं। कोई भी जगह हो, कोई भी वक्त हो, लेकिन आज का इतवार का 30 रजब का दिन हो, पहले से आधा मिनट इस अमल को पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। ये आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपको किसी से थोड़ी सी बातचीत नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप लोग वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते फोन पर लगे हुए हों, बातों में लगे हुए हों, मेरी बहनें घर के कामों में लगी हों, साथ साथ में वज़ाइफ पढ़ें, तो ऐसे आपका वजीफा बिल्कुल असर ना करेगा। सुकून से, इत्मीनान से बैठ के तसल्ली से, पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। कोशिश करना जब ये आप लोग अमल शुरू करें अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ पर या जुबानी काउंट करते हुए इस अमल का पहले नंबर वाला वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है। साथियों, भाइयों बहनों, आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहले नंबर पर आपको या सलामों का वजीफा 7 टाइम यानी 7 मरतबा पढ़ लेना है। तो सेकंड नंबर पर इस अमल में जो आसान सा छोटा सा वजीफा शामिल करना है, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर आपके पास मौजूद हो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या जुबानी काउंट करते हुए सेकंड नंबर वाला वजीफा, आसान सा वजीफा जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये पूरा अमल याद रखिएगा, शुरू से लेके एंड तक का जो अमल है, आपको एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के एक साथ आपको ये पूरा अमल करना है। तो पहले नंबर वाला वजीफा जैसे ही आप लोग 7 मरतबा पढ़ लें तो फौरन उसी वक्त इस अमल का सेकंड नंबर वाला आसान सा वजीफा तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर देना है। आपने 2 वज़ाइफ को साथ मिला के पढ़ना है तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ना है आप लोग ये समझ लें। सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे या अल्लाहु या फताहु,
1 हो गया, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। फिर दूसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या फताहु, फिर तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या फताहु। इस तरह आप लोग तस्बीह के दानों पे या सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए जैसे आप लोग अच्छी तरह काउंट कर सकें। और बराहे करम जो वजीफा जिस तादाद में आपको बताया जाए, जिस तरतीब से आपको बताने लगा हूँ उसी तरतीब से पढ़ना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी तब्दीली करेंगे तो कोई फायदा ना होगा। और याद रखिएगा इस अमल को, ये जो 30 रजब का ये अमल है इतवार वाले दिन का, जिसने एक मरतबा साल में एक बार 30 रजब को मेरे तरीके से ये अमल कर लिया ना दोस्तों भाइयों बहनों, ऐसा आजमूदा अमल है कि हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी में इस वजीफे को पढ़ते ही कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। हजारों लाखों लोग अपनी हाजतों को, मुरादों को पूरा कर चुके हैं। तो आप तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब सेकंड नंबर पर इस अमल में या अल्लाहु या फताहु का वजीफा पढ़ेंगे। दोबारा समझ लें किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार पढ़िएगा या अल्लाहु या फताहु, 1 हो गया। आप अपने अंदाज से पढ़िएगा या अल्लाहु या फताहु या अल्लाहु या फताहु या अल्लाहु या फताहु। इस तरह से इस वजीफे को पढ़ते रहिएगा। और ये वजीफा या अल्लाहु या फताहु का आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ा या सलामू का दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद 1 मरतबा दुरूद पाक लाजमी आपको पढ़ना है, चाहे कोई सा भी पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहले नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों या सलामू का पढ़ना है। और या सलामू का वजीफा 7 बार पढ़ लिया तो इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों वो है या अल्लाहु या फताहु का वजीफा मिला के पढ़ना है। दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह आपको ये वजीफा 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लेना है। अब आपको क्या पढ़ना है इस अमल में, ये पूरा का पूरा अमल दोस्तों भाइयों बहनों जो मैं आपको बताने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ, मेरे आपको बताने में आपके जहनों में एक एक बात बैठाने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों जब आप आज 30 रजब का ये पूरा का पूरा अमल करने के लिए, पढ़ने के लिए खुद बैठेंगे ना तो आपको बामुश्किल इस अमल को पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड, आधा मिनट का वक्त लगेगा। कोई आपको घंटों मिनटों का वक्त नहीं लगेगा कि आप परेशान हो, सिर्फ आधा मिनट का आपको वक्त लगेगा। आधे मिनट का मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई वक्त काउंट ही नहीं होता। बंदा उठता है बैठता है तो आधा मिनट यूं निकल जाता है। तो आप लोग आधे मिनट का वक्त निकाल के ये वजीफा लाजमी पढ़ना, कितनी भी मसरूफियात हो, कितने भी आप लोग बिजी हो। वैसे इतवार का दिन है, हर बंदा जो है वो फारिग होता है, काम की छुट्टी होती है। कोशिश करना अपने घर में सुकून से बैठ के इस अमल को करना, क्योंकि घर ऐसी जगह है बजाय इसके कि आप बाहर कहीं पढ़ें, कहीं और पढ़ें, किसी और जगह पढ़ें। तो कोशिश करना अपने घर के अंदर सुकून से बैठ के पढ़ना। और इस अमल को जैसे ही पढ़ लें, ये अमल पूरा जैसे कंप्लीट हो जाए, आखिर में आप लोग क्या करते हो, आखिर में दुआ नहीं मांगते। जब दुआ मांगने का वक्त आता है ना तो मेरे भाइयों आप लोग कहते हो कि बस हमने वजीफा पढ़ लिया काफी है। लेकिन आज का जो अमल है ना, जब तक आप लोग दुआ नहीं मांगोगे आखिर में आपका वजीफा कंप्लीट नहीं होगा। और बराहे करम 1 सेकंड की भी अगर आपने अब तक वीडियो काटी है तो अब वीडियो मत काटिएगा। बड़ी अहम बातें आपको बतानी है। आपने 30 रजब को इतवार वाले दिन सुकून से बैठकर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू किया। 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दोस्तों भाइयों बहनों आपने पहले नंबर पर या सलामू का वजीफा इस अमल में शामिल कर लिया। पहले वाला वजीफा आपने 7 मरतबा या सलामू का जैसे ही पढ़ लिया तो इस अमल में सेकंड नंबर पर आप तमाम बहन भाइयों को या अल्लाहु या फताहु का वजीफा मिला के 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा ये वजीफा भी पढ़ लिया तो दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल का बिल्कुल आखिर में तीसरा और आखिरी वजीफा जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, उसी वक्त पढ़ना शुरू कीजिएगा। बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इस अमल का 30 रजब के इतवार वाले दिन का आखिरी वजीफा, तीसरे नंबर वाला वजीफा आपको यही पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ। शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी ऐसा हो जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो, और इनमें से कोई वज़ाइफ अगर आपने अपनी जिंदगी में पहले भी पढ़े हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा अमल बिल्कुल एक अलग ही अमल बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी इजाजत से बताया है। हर वजीफा अपनी एक अलग तादाद में पढ़ना है। एक पूरा अमल बताया है जो 2, 3 वज़ाइफ 4 वज़ाइफ मिला के जिस तरतीब से जो वजीफा जिस तादाद में जिस तरह बताया है उसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और आखिर में दुआ मांगेंगे। तो मेरे भाइयों
मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरी तौर पर जो भी आपकी हाजतें होंगी, मुरादें होंगी, ज़ाती मकान चाहते हो, बड़ी गाड़ी चाहते हो, बड़ी से बड़ी रकम चाहते हो, कर्जों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, तो आपकी हाजतें हो, चाहे एक हाजत हो, चाहे 100 हाजतें हो, चाहे एक परेशानी हो, चाहे 100 परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, आपको सेकंड नंबर वाला वजीफा जैसे ही 11 मरतबा या अल्लाहु या फताहु को मिला के पढ़ लिया, तो उसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा इस अमल का कौन सा पढ़ना है जल्दी से समझ लें। तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो वजीफा इस अमल में आपको पढ़ना है, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर तस्बीह आपके पास मौजूद हो, ना हो तस्बीह तो भी कोई बात नहीं, सीधे हाथ पे काउंट कर लीजिएगा या जुबानी काउंट कर लीजिएगा। और दोस्तों भाइयों बहनों, पहले ये समझ लें इस वजीफे को किस तरतीब से पढ़ना है, ये बड़ी अहम बात है, इसको पहले समझें, फिर मैं आपको तादाद बताता हूँ। और इस वजीफे को, ये तीसरा और आखिरी नंबर वाला वजीफा पढ़ने के बाद बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिर में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल आखिरी सेकंड तक पूरा का पूरा अमल समझ के जाइएगा। बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल आखिरी सेकंड तक अमल समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आखिर में करना क्या है। आखिर की बहुत सी बातें आप लोग मिस करके छोड़ के चले जाते हो। बस आपको ये होता है कि वीडियो बड़ी बन गई है, अब हम छोड़ के जल्दी से भाग जाएं। हालांकि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, तो अब आगे थोड़ी सी 1 मिनट की वीडियो बाकी है। आखिर में क्या पढ़ना है, इस वजीफे को पढ़ने के बाद पहले वजीफा समझें और फिर आखिर में जो करना है वो भी समझ के जाइएगा, ताकि आप लोग आज 30 रजब को इतवार वाले दिन जब इस पूरे अमल को पढ़ने के लिए बैठे, तो आप सही तरह अमल करें, पूरी तरतीब से पूरा अमल समझें और पूरा अमल करें, तो आपको फौरी तौर पर फायदा होगा। तीसरा और आखिरी वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों, आपको पढ़ना है या नाफियू का, या नाफियू, या नाफियू, या नाफियू पढ़ते रहें, या नाफियू। आप लोग अपने अंदाज से पढ़िएगा, या नाफियू, या नाफियू, या नाफियू, इस तरह पढ़ते रहिएगा। या नाफियू का वजीफा इस अमल में आपको सबसे आखिर में, बिल्कुल एंड में दोस्तों भाइयों बहनों 21 मरतबा यानी 21 टाइम पढ़ लेना है। जब 21 मरतबा या नाफियू का वजीफा भी पढ़ लें, तो उसके बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। जो भी आपकी हाजतें हो, मुरादें हो, परेशानियां हो, उन सब के लिए अल्लाह पाक से खूब रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगिएगा। दुआ मांग लेंगे तो फिर आपका ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सब के लिए खुशियों का साल बना दे, सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला करीम तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, जो मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, इनको और इनकी नस्लों को बात कर दे, इनको और इनकी नस्लों को दौलत और रिज्क की फरावानी से माला माल कर दे। मेरे मौला हमें गैब से रिज्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।